مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. تو بڑی خوبصورت باتیں آج خدا کے کلام میں سے کرنے کو، اور میرا ایمان ہے کہ سرمن کے ذریعے سے آپ بہت بلیسفل ہونے والے ہیں. بے شک ہم یہاں پر تھوڑے ہیں، لیکن یقین جانیں جو کلیسیا ہے، کلیسیا کی مقدار، کلیسیا کی تعداد اگر بتائی گئی ہے بائبل میں، خداوند یسوع نے کہا جہاں 2 یا 3 مل جائے وہاں پر خدا تخت نشین ہوتا ہے. تو خدا کی حضوری اس وقت ہی آ جاتی ہے جب ہم 2-3 آ جاتے ہیں. یہاں پر تو ہم 2-3 سے زیادہ ہیں. آمین. تو آئیے اس بات کے ہم زوردار تعلیم جانتے ہیں. میرا جو آج کا سبجیکٹ ہوگا خداوند کے کلام سے فریب نہ کھاؤ. Do not be deceived. تو اس کے تعلق سے ہم سیکھیں گے فریب نہ کھاؤ. تو آئیے میرے ساتھ حوالہ نکالیے. پہلا یوحنا 3 باب اس کی 7ویں آیت خداوند کے کلام میں سے. سنیے خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، اے بچوں کسی کے فریب میں نہ آنا. جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راست باز ہے. جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے. خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے. بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. شکر سے بیٹھے. ہاللیلویہ. آئیے پاک روح کو زوردار تعلیم کے ساتھ کرتے ہیں. Don't be deceived یعنی فریب نہ کھاؤ. اس کے تعلق سے خداوند کے کلام میں سے بیان کروں گا. یہ فریب کا جو مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے گمراہ کرنا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ گناہ کرنا. یا ایک آپ راستے پر چل رہے ہیں، وہاں سے آپ ہٹ جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی لیا جاتا ہے. مگر یہاں پر جو میں بائبل میں سے بتاؤں گا یہ گناہ ہی ہے، سن ہے، اور گمراہ کرنا. تو خداوند کے کلام لکھا ہے فریب نہ کھاؤ، گمراہ نہ ہو جانا. کیونکہ یہ دنیا کے اندر خداوند کے کلام لکھا ہے جو خدا سے پیدا ہوئے وہ خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں، اور جو ابلیس سے ہیں وہ کس سے ہیں؟ ابلیس کے فرزند کہلاتے ہیں. اس لیے دنیا کے اندر خداوند کے کلام لکھا ہے جو دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ خدا سے دشمنی رکھتا ہے. تو خداوند کے کلام کے اندر یہ ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں فریب نہیں کھانا، یعنی دھوکہ نہیں کھانا، گمراہ نہیں ہو جانا. مگر ابلیس جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق ابلیس ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے. وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ راستے سے ہٹانا چاہتا ہے. وہ ہمیں فریب دیتا ہے، وہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ ہم خدا کے لوگ ہیں. اور لکھا ہے پوری دنیا جو ہے وہ لکھا ہے شیطان کے قبضے کے اندر ہے. پوری دنیا اس کے فریب کے اندر آئی ہوئی ہے. کائنات کی ہر کوئی انسان جو بھی ہے دنیا کے اندر، جتنی دنیا اس دنیا کے اندر ہے، آپ کو نظر آئیں گے، انسان نظر آتے ہیں، ہر چیز لکھا ہے کہ اس کے قبضے کے اندر ہے. کیونکہ وہ فریب دیتا چلا جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرتا چلا جاتا ہے. کیونکہ اسے آسمانوں سے گرا دیا گیا تھا. وہ خداوند کا فرشتہ تھا. اسے جب آسمانوں سے گرایا گیا تو کیوں پھر اس نے لوگوں کو بھی کیا کیا؟ گرانا شروع کر دیا. وہ گراتا ہے ہمیں، وہ خدا کی حضوری میں نہیں رہنے دیتا. وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی گناہ میں گریں، وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی خدا سے دور ہو جائیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم گمراہی کے اندر چلے جائیں، دنیا کے اندر چلے جائیں. میں نے بتایا شیطان ہمیں دنیا دکھاتا ہے. خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب ایوب کا دور تھا تو لکھا ہے خدا نے شیطان سے کہا کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں دنیا کیا کر کے آ رہا ہوں؟ چکر لگا کر آ رہا ہوں. دنیا دیکھ رہا تھا، وہ دنیا کا چکر لگا رہا ہے. جب دنیا اس کے اندر ہے تو دنیا کو دیکھتا ہے اور دنیا ہی انسانوں کو دکھاتا ہے. میں نے بتایا دنیا جو ہے وہ اس کے قبضہ کے اندر ہے، فریب کے اندر آئی ہوئی ہے. مگر چند ہی لوگ ہیں خدا کے لوگ جو وہ اس کے فریب میں نہیں ہیں، جیسے آپ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. ورنہ وہ بھائی دنیا کے اندر آپ کو فریب دے کر گھر میں بٹھا دے، یہ اس کا فریب ہے. یہ اس کا کیا ہے؟ یہ اس کا بھائی گناہ میں گرانا ہے. آپ کو آسمان کی بادشاہی میں آنے سے روکنا ہے، خدا کی حضوری میں آنے سے، عبادت میں آنے سے روکنا. وہ کوئی بہانے کرے گا، سردی ہے، موسم اس طرح کا ہے، گھر میں کوئی اور کام کر لے، کوئی مہمان آ گیا، فلاں آ گیا،
वो बहाने लगाता है, वो गुमराह करता है, क्योंकि वो लिखा है फरेब देता है। वो भाइयों हमें क्या करता है, फरेब के अंदर डालता है। इसलिए बाइबल में लिखा है खुदा का बंदा इस हक के अंदर कहता है फरेब ना खाओ, भाई फरेब ना खा जाना प्लीज। फरेब देता है, वो धोखा देता है, वो क्या करता है, झूठा है, बल्कि झूठों का भी बाप है। तो वो ये फरेब के अंदर हमें डालता है, और मानता है पूरी दुनिया उसके फरेब के अंदर आई हुई है। और चंद लोग ही आपको चंद ही लोग चर्चिस के अंदर ईमानदार बिलीवर दुनिया के अंदर मिलेंगे, कुछ थोड़े से हैं और उन्हीं के पीछे लगा हुआ, उन्हीं को फरेब देना चाहता है। दुनिया तो है ही उसके हाथ में है। लिहाजा खुदावंद के कलाम के अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमें फरेब देता, हमें गुमराह करना चाहता है, हमें खुदा की हजूरी से हटाना चाहता है। तो वो कामयाब हो जाता है, बड़े बड़े ईमानदारों को गिरा देता है, बड़े बड़े जो रूहानी स्पिरिचुअल खुदावंद की वर्शिप करने वाले लोग हैं, दुआ करने वाले लोग हैं, उनको गिराता है। मगर जो ईमानदार हैं वो भैया खड़े रहते हैं, वो क्या करते हैं, फ्रेम में नहीं आते। जो फ्रेम में नहीं आते वो बच जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर पहुंचे, सुनो आप उसके फ्रेम से भैया बचकर यहाँ पर आए हैं, और ना उसमें तो फ्रेम में डालना है, वो आपको गुमराह करेगा। टेलीविजन के ऊपर मोबाइल के जरिए से गुमराह कर सकता है। मैंने बताया वो दुनिया ही दिखाता है। वो क्या करता है, दुनिया क्योंकि देखता है और दुनिया ही के अंदर चक्कर लगाता है, दुनिया ही दिखाता है मुझे और आपको, ताकि हम गुमराह रहें। तो लिहाजा खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि हम खुदा से हैं। हम क्या हैं, खुदा के बेटे हैं। जो इब्लीस से हैं, लिखा वो दुनिया के हैं, वो फरेब खा जाएंगे। मगर एक ईमानदार बिलीवर जो खुदा के बेटे बेटियां हैं, वो फरेब नहीं खाते, वो उसके हत्थे नहीं चढ़ते। मगर बाइबल में लिखा है इब्लीस फरेब ही देता है, झूठा है, गुमराह करता है। और लिखा है कि आदम और हवा को उसने क्या किया, हवा के पास आ गया और हवा को सबसे पहले क्या कहा उसने, उसका वाकई आपको किसी फल खाने से मना किया खुदा ने? हमने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। फल के दरख्तों के फल तो हम खाते हैं, सारी खाते हैं। हाँ, एक दरख्त ऐसा है जो बीच में है, नेकोबद का दरख्त, उसका फल खुदा ने हमें मना किया है। तो उसे छूना भी नहीं, उसे देखना भी नहीं, खुदा ने मना किया हुआ। मगर वो क्या कहने लगा, शैतान लूसीफर क्या कहने लगा उसे, शैतान देखे फरेब देने लगा हवा को। क्या कहता है, कहता नहीं नहीं नो नो, बल्कि तुम इसे खाओगे तो फिर खुदा की मानद बन जाओगे। झूठ बोलने लगा, गुमराह करने लगा, फ्रेम के अंदर डाल दिया उसे। लिखा है जब वो फ्रेम के अंदर हवा आ गई तो उसने फल को छुआ भी, पकड़ा भी, उसे तोड़ा भी और उसे खाया भी। अब देखिए, खुदा ने मना किया था उसे देखना तक नहीं, मगर उसने क्या किया, फ्रेम में आ गई। इसलिए खुदावंद के कलाम में पौलुस रसूल कहता है कि जो हवा, जो आदम फ्रेम नहीं खाया, आदम ने फ्रेम नहीं खाया, लेकिन हवा उसकी फ्रेम में आ गई। ये वो वही उसके झांसे में आ गई, वो फ्रेम खा गई दुनिया के अंदर, शैतान के हत्थे चढ़ गई। और खुदावंद के कलाम लिखे है आदम ने फ्रेम नहीं खाया, बल्कि हवा ने फ्रेम खा लिया। और फिर हवा के जरिए से फिर आदम ने भी उस फल को खाया और दोनों फ्रेम के अंदर आ गए। तो भाइयों, आज दुनिया के अंदर देखें, खाने के ऊपर ही आपको जो इंसान नजर आएगा, वो खाने पर ही इंसान की नजर होगी। आज इंसान दुनिया का अच्छे से अच्छा खाना खाना चाहता है। वो कहता अच्छी सी बिरयानी बनी हुई, या गोश्त हो, आलू गोश्त हो, या क्या कह सकते हैं, नहीं पसंद किसी को, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, चिकन किसी को पसंद है। आजकल तो बर्गर बड़ा पसंद है लोगों को, बर्गर के अलावा शवारमा बहुत पसंद है। लोगों की नजर जो है इन चीजों पर, खाने पर। और आजकल तो पिज्जा भी खाया जाता है, पुलाव खाया जाता है बहुत। ये नहीं, दुनिया के अंदर क्या ये इंसान की नजर जो है इन चीजों के ऊपर, खाने वाली चीजों के ऊपर। और खुदावंद के कलाम लिखा है वो खाने की वजह से क्या हो गई, फ्रेब खा गई हवा। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा ने खाना खाने से मना किया है, नो नो, खाना तो खुदावंद की बरकत है। खाना अगर अच्छा मिल जाए तो खुदा की ये क्या है, बरकत है, ब्लेसिंग है। कोई इस खाने को खाना चाहे तो खुदा की बरकत है। मगर कहने का मकसद ऐसा खाना जिससे शैतान आपको गुमराह कर दे, जिससे शैतान आपको फ्रेब दे दे, वो भाइयों गुनाह की तरफ ले जाएगा। लिहाजा लिखा है जो कुछ तेरे पास है उसी पर कनायत कर, जो कुछ तेरे पास है उसी पर क्या कर, कनायत कर।
भी शुक्रगुजारी कर जो कुछ है तेरे पास, और अगर इससे बढ़कर कुछ हासिल करना चाहते हैं इसके अंदर वो गुनाह के अंदर आ जाएगा। इससे बढ़कर कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, वो अगर आपके पास वो नहीं है, आप जबरदस्ती वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज के पीछे, तो इसमें लोग गुमराह हो जाएंगे, तो फिर फ्रेब खा जाएंगे हवा की तरह। लिहाजा शैतान के बारे में लिखा है कि वो क्या करता है, फ्रेब देता है, वो गुमराह करता है। उसने हवा को फ्रेब दिया, और लिखा है आदम भी फ्रेब के अंदर आ गया। और खुदावंद के कलाम लिखा है उनकी जिंदगी जो बड़ी अच्छी थी, नो टेंशन, ना कपड़ों की फिक्र। आज तो लोग कहते हैं ना कपड़े सुहाने नहीं, उन्होंने कपड़े की भी फिक्र सी, हालेलुया। ना खाने की फिक्र, फल भी इतना ज्यादा। अब देखिए, ना सोने की फिक्र, जहां पर मिलना जगह वहीं सो जाते, आमीन। दरख्तों के ऊपर भी सो जाते थे, अब जहां जगह मिल जाती। और मैंने बताया कि उनको टेंशन ही नहीं थी, डिप्रेशन ही नहीं था, किसी चीज की टेंशन नहीं थी। और लिखा है कि जब फ्रेब खा गए तो फिर खुदा के ज़रिए से आउट कर दिए गए। जब क्या हुए, लिखा है खुदा ने सी देखा उठा के ना चलो उनको चेयर पे जाके बैठा था, बेटा आप चेयर पे चले जाते, शाबाश चेयर पे जाएंगे, फिर मैं आगे बोलूंगा कि फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। चलो एक को इधर बिठा दो, इधर। हाँ जी, खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि फ्रेब ना खाओ। ये फ्रेब जो है, ये भाइयों मैंने बताया कि गुमराह कर देना, फिर धोखे के अंदर ले आना। ये शैतान एक ईमानदार बिलीवर को क्या करता है, फ्रेब देता है, धोखा करके उसे गुमराह कर देता है, यानी उसे सही रास्ते से हटाकर गुमराही के अंदर डाल देता है इब्लीस। ये इब्लीस जो है फ्रेब देता है, क्योंकि ये दुनिया दिखाता है, और लिखा है कि दुनिया ही के अंदर घूमता है और दुनिया ही दिखाता है। इसलिए खुदावंद के कलाम लिखा है आदम को तो फिर वो ले डूबा, हवा को भी ले डूबा, मगर खुदावंद के कलाम लिखा है क्राइस्ट के पास जब आया, यीशु मसीह के पास आया, तो लिखा है यीशु मसीह को भी क्या कहता है, शान शौकत देह नजर कर, सब तुझे दे दूंगा, मुझे सजदा कर। यीशु मसीह ने डांटा, भाग शैतान, और क्या वो भाग गया। आइए इस बात के लिए जोर देता है, हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह खुदा का बेटा जो है वो फ्रेब के अंदर नहीं आया, उसे डांटा। और अगर आप, मैं और आप अगर भाइयों फ्रेब नहीं खाना चाहते, इसको मतलब इब्लीस को डांटना पड़ेगा हमें। इसलिए तो लिखा है इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे क्या होगा, भाग जाएगा। उसे भगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कलाम करना पड़ेगा। कलाम के जरिए से इस शैतान भागता है। तो भाइयों कलाम करेंगे, यानी खुदा का नॉलेज आपके पास होगा। दुनिया का नॉलेज की नहीं बात कर रहा, ये खुदा का नॉलेज, खुदा का कलाम, इससे शैतान भाग जाता है। इससे आपको जो है वो फ्रेब देने नहीं पाता। तो इसका मतलब जब कलाम नहीं होगा, जब खुदा का कलाम आपके अंदर नहीं, तो इसका मतलब वो फ्रेब दे सकता है। लिहाजा भाई बहनों, दुनिया के अंदर इब्लीस जो है वो हमें क्या करता है, फ्रेब देता है। लिहाजा उसके फ्रेब से, उसके गुमराह होने से बचना है, हमें उसके धोखे से हमें बचना है। वो हमें सही रास्ते से हटाकर दुनियादारी के अंदर लेके जाता है। और लिखा है जो दुनिया से मोहब्बत रखता है वो खुदा से दुश्मनी करता है, वो खुदा से, लिखा है दुनिया के अंदर जो मोहब्बत रखते हैं, मसीहत के अंदर याद रखिए भाई दुनिया नहीं है। दुनिया के मजहब जो है उनके अंदर दो चीजें पाई जाती है, दुनिया और मजहब, यानी उनकी रूहानी जो तालीम होती है, और फिर दूसरा उनके अंदर दुनिया शामिल होती है। किसी मजहब को भी उठा के देख लें, मगर वाहिद एक मसीहत एक ऐसा मजहब है, वो भाइयों जस्ट उसके अंदर रूहानियत ही है। हालेलुया हालेलुया। यानी उसके अंदर आपको दुनिया नहीं नजर आएगी। अगर दुनिया है इसका मतलब वो खुदा की तालीम नहीं है, वो बाइबल की तालीम नहीं है। मैंने बताया दुनिया के जो भी मजहब बने हैं वो दो चीजों से मिलकर बने, एक दुनियादारी यानी दुनिया को लेकर, और एक मजहबी तालीम को लेकर उनके मजहब बने। मगर बताया जो मसीहत है वाहिद, वो भाइयों दुनिया को लेकर नहीं बने, वो दुनिया से कट ऑफ होकर बने हैं। मैंने बताया दुनिया शैतान के हाथ में है, उसके कब्जे में दे दी गई है। मगर मैं ईमानदार बिलीवर जो यीशु मसीह पर ईमान रखता, जो खुदा के बेटे हैं, वो चंद है मगर खुदावंद में मजबूत है, आमीन। वो फ्रेब नहीं खाते। लिहाजा एक ईमानदार बिलीवर जो है फ्रेब खाने ना पाए, उसकी जिंदगी में दुनिया ना आने पाए, यानी उसके अंदर नापाकी ना आने पाए, दुनिया के काम ना आने पाए। तो अगर दुनिया के काम आ गए इसका मतलब फिर वो शैतान के फ्रेब में आ गए हैं, शैतान के धोखे में आ गए हैं, फिर उनके अंदर दुनिया ही नजर आती है। इसलिए क्या हर शख्स अपने फल से पहचाना जाता है। दरख्त क्या होता है, अपने फल से
किसी को पहचानने का आसान तरीका, कहते बंदा पहचाना नहीं जाता, आसान सा कुरिया बाइबल बताती है। दरख्त अपने फल से, सेब का फल जो होगा वो, सेब का दरख्त अगर लगा हुआ है तो सेब ही आएंगे, उस पे आम नहीं लगेंगे। आम का अगर पेड़ है तो उस पे सेब नहीं लगेंगे, कौन सा लगेगा? तो आप देखिए, ये आसान सा कुरिया। लिहाजा खुदावंद के कलाम ने कि हमें, मेरी और आपकी जिंदगी में भाइयों फ्रेब शैतान ना डालने पाए, हमें फ्रेम में ना डाले, हमें गुमराह करने ना पाए, हमें दुनिया में ना लेकर जाए। और अगर दुनिया के अंदर चले जाएंगे, इसका मतलब है आप इब्लीस के हत्थे चढ़ गए हैं, आप गुमराह हो गए हैं, दुनियादारी आपके अंदर आ गई है। और खुदावंद के कलाम के अंदर बनी इसराइल जो थे वो इब्लीस के झांसे में आ गए। भैया लिखा है कि उन्होंने क्या किया, दुनिया अपने अंदर ले आई, बुत परस्ती के अंदर पड़ गए, नशाबाजी के अंदर पड़ गए, लालच के अंदर पड़ गए, और फिर क्या झगड़े के अंदर पड़ गए। ये दुनियादारी के काम उनकी जिंदगी में आ गए, बनी इसराइल की जिंदगी में। और फिर क्या है, वो क्या होगी, दुनिया के अंदर बिखर गई, खुदा पीछे हो गया, खुदा ने उनको छोड़ दिया। जब गुनाह आ जाएगा तो फिर खुदा भाई उनसे दूर हो जाएगा। किसी जिंदगी के अंदर भी गुनाह आ जाएगा तो फिर वो शैतान के चक्कर में आ गया, वो तो फेब खा गया और खुदा की हुजूरी उससे दूर हो जाएगी। तो अगर भाइयों दुनिया आपकी जिंदगी में नजर आ गई, नशाबाजी, नाचना और दीगर ऐसी चीजें, बदी, बदकारी, गुनाह, इसका मतलब है आपकी जिंदगी में शैतान ने जो आपको फ्रेब दे दिया है, दुनिया आपकी जिंदगी में आ गई, शैतान ने आपकी जिंदगी में घर कर लिया, तो फिर वो शैतान आपका क्या हाल करेगा आपको पता है। इसलिए क्या, जो खुदा से है वो खुदा का भैया गुनाह नहीं कर सकता, एक ईमानदार भी वो गुनाह नहीं कर सकता। लोग कहते जो हो जाता है, थोड़ा बहुत गुनाह कर दिए की होगा, मगर यहाँ पर बाइबल में लिखा है जो खुदा से पैदा हुआ है, खुदा के तुखम से है, लिखा है वो गुनाह नहीं कर सकता, वो गुनाह नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि मैं और आप वही खुदा के तुखम से हैं, यानी खुदा से पैदा हुए हैं। मैं और आप गुनाह नहीं कर सकते क्योंकि खुदा से है भाइयों। और भाइयों अगर कोई गुनाह करता है इसका मतलब वो दुनिया से है, शैतान के फ्रेम में आया हुआ है। लिहाजा मुझे और आपको गुनाह नहीं करना, शैतान के फ्रेम में नहीं आना। आखिरी बात सुन लीजिए, खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है बनी इसराइल के एक बादशाह था। वैसे बनी इसराइल के 40 बादशाह थे, यहूदा के कबीला में से और इसराइल के कबीला में से। यानी आप देखिए कि सामिया के इलाका के अंदर 10 कबीले थे और फिर 2 यहूदा के कबीला में से, यानी 12 कबीले में से लिखा है कि 40 बादशाह बनी इसराइल के आए। सब के सब भाइयों इब्लीस के फ्रेम में आ गए, गुनाह के अंदर बदकारी करते थे, खुदा से दूर हो गए। यानी शैतान वही दुनिया उनके अंदर आ गई ना, हर किस्म का नशा उनकी जिंदगी में, ऐशो आराम और खुदा से दूरी। और लिखा है कि बाइबल में लिखा है कि हैकल के अंदर लिखा है मुख्तलिफ जगहों पर गर्द ऊपर होगी, यानी वो खुदा की इबादत ही नहीं करते थे। और लिखा है वहां पर शरीयत की किताब गुम गई। अब देखिए शरीयत की किताब गुम गई, कोई आकर खुदा की इबादत करता नहीं था। और लिखा है चीजों के ऊपर गर्द पड़ गई, कोई झाड़ने वाला भी नहीं था। खुदा का गजब उन पर इस तरीके से बढ़ा। कोई जो लीडर थे वो भी गुमराह हो गए, फ्रेब के अंदर आ गए, इब्लीस ने उनको गुमराह कर दिया, खुदा से दूर हो गए, दुनियादार हो गए। और खुदावंद के कलाम लिखा है कि हिजकिय्याह के दौर के अंदर लिखा है कि जब वो सफाई कर रहे थे उसके लोग, तो लिखा उन्होंने कहा कि हैकल में से एक किताब मिली है, तो उन्होंने कहा दिखाओ पढ़ो। लिखा है उसके सामने पढ़ी गई, तो उन्होंने कहा यार सारी जिंदगी हमने खुदा के कलाम पर अमल नहीं किया। उन्होंने खूब रोए, खुदावंद के सामने माफी मांगी और बहाली के अंदर आ गया। आमीन। मगर खुदावंद के कलाम लिखा आगे चलकर लिखा है कि एक बादशाह बनी इसराइल का गुजरा, 40 बादशाहों में से एक बादशाह, 40 बादशाह में से कुछ बादशाह अच्छे थे, 2-3 बादशाह, बाकी सब बदकार, खुदा से दूर, शैतान ने फ्रेब दे रखा था, गुमराह हो चुके थे वो। उनमें से एक ऐसा बादशाह था, सुनिए खुदावंद के कलाम लिखा है कि उसने इस कदर बुरे काम किए खुदा की नजर में। लिखा है वो असूर के इलाका के अंदर गया, वहां पर उसने गैर कौमों का एक मजबा देखा। हैकल के अंदर जो मजबा था वो पीतल का मजबा था, वहां पर लोग कुर्बानियां देते थे और सैक्रिफाइस करते थे, खुदावंद की इबादत करने के लिए आते थे। मगर लिखा है असूर, वो बादशाह ने असूर के अंदर गया और वहां पर एक मजबा बना था। उसी का ये मजबा तो मेरे हैकल में यानी मेरे मुल्क के अंदर होना चाहिए था। उसने अपने कहा कि किसी कमांडर को, किसी बंदे से कहा, उसने कहा कि ये सारा नक्शा मुझे फौरन मेरे जाने से पहले वहां पर जहां पर खुदा का मजबा पड़ा है उस कुर्बानगाह को उठाकर
ایک سائڈ پر رکھ دینا اور وہاں پر یہ مذبح غیر قوموں کا بنا دینا. اور لکھا اس نے کہا میرے جانے سے پہلے اس بادشاہ نے کہا بنی ہونی چاہیے. اور لکھا ہے اس نے کہا خدا کا مذبح ایک سائڈ پر, خدا کا مذبح میرے سوال کا ہوگا کہ تو نے مجھے کیا دیا ہے, اور مگر دنیا کا جو مذبح ہے جو اسور سے لایا گیا ہے مذبح, اس پر میں اپنی قربانیاں گزاروں گا اور قوم کی قربانیاں گزاروں گا. یعنی اس نے نہایت مکروہ کام کیا, خدا کی نظر میں ناپاک کام کیا. اور لکھا ہے خدا کا غضب قوم پر بھڑکا. بھائیو یہ بدن جو ہے ہمارا جو ہے یہ خدا کا مقدس ہے. لکھا جو اسے تباہ کرے گا میں اسے تباہ و برباد کر دوں گا. ایسے نہیں کوئی نشہ کرنے والے لوگ اور دیگر اسے برباد اگر کوئی کرے گا, یہ خدا کا مقدس ہے. ہیکل کے اندر یہ جو ہیکل ہے یہاں پر خدا اپنی حضوری دیتا ہے, مگر یہ ہیکل جو کرائسٹ نے اپنے خون سے بنائی ہے یہاں پر وہ رہتا ہے. آئیے اس بات کے لیے زور دیں. ہاللویا ہاللویا. لہذا خداوند کے کلام میں جو کوئی اس ہیکل کو برباد کرے گا میں اسے برباد کر دوں گا. اس لیے بھائی دنیا کے فریب کے اندر, شیطان کے فریب میں نہیں آنا. لکھا ہے اس بادشاہ نے نہایت مکروہ کام کیا اور وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے قربانیاں ناپاک جانوروں کی قربانیاں دی اور خدا کا غضب اس پر بھڑکا. میں سمجھتا ہوں آج دنیا کے اندر بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں, بڑے بڑے ایماندار لوگ ہیں جنہوں نے غیر قوموں کی رسومات اپنی زندگی میں ڈالی ہوئی ہے یا وہاں کے بھائی مذہبیں بنا رکھے ہیں اور بھائیوں ناپاک زندگی بسر کرتے ہیں. خدا کے نام کے لیے بدنامی ہے, خدا کے نام کے لیے رسوائی ہے. اور بھائی ایسے لوگوں کو خدا پھر کیا کرے گا بھائیو مشکلات کے اندر ڈالے گا, تباہ کر دے گا, بدنوں کو تباہ کرے گا. ان کے کیسے کرے گا بھائیو بیماریوں میں ڈالتا ہے پھر خدا. اگر بھائی شیطان کی ورشپ کریں گے پھر خدا کیا کرتا ہے بیماریوں میں ڈالتا ہے, دکھوں میں ڈالتا ہے, مشکلات میں ڈالتا ہے. یہ جسم وہی تباہ ہوتا چلا جاتا ہے دن بہ دن, روز روز. آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہے سے, کیونکہ انہوں نے خدا کے مذہب کو ناپاک کر رکھا, خدا کی حضوری کو پامال کرتے ہیں اور اپنے اندر غیر قوموں کے مذہب بنا رکھے ہیں. پھر خدا کا غضب ان لوگوں پر نازل ہوتا ہے. بھائیو خداوند کے کلام کے اندر کیا ہے فریب نہ کھاؤ. آمین. شیطان ہمیں فریب دیتا ہے, شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے. بھائیو شیطان کے جھانسے میں نہیں آنا, اور جو لوگ جھانسے میں آ جائیں گے ان کے اندر آپ کو دنیا نظر آئے گی. لیکن جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ خدا سے ہے. وہ لکھا گناہ نہیں کرتے, لیکن جو گناہ کرتے ہیں اس کے اندر وہ شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں. پھر وہ خدا کے گناہ کریں گے, اس کے اندر وہ اپنے اس مقدس کو برباد کر رہے ہیں. تو لکھا جو میرے مقدس کو برباد کرے گا میں اسے برباد کر دوں گا. لہٰذا بھائیو بہنوں مجھے اور آپ کو شیطان کے فریب میں نہیں آنا. اس لیے خداوند کے کلام لکھا ہے فریب میں نہ آؤ, فریب نہ کھانا, کیونکہ ہوا فریب کھا گئی. لکھا آدم نہیں فریب کھایا, آدم نے نہیں کھایا, مگر پھر وہ بھی اس کے جھانسے میں آیا, دونوں نے پھل کھایا. خداوند کے کلام لکھا ہے مجھے اور آپ کو مضبوط رہنا ہے, اپنی زندگی میں گناہ نہیں آنے دینا. کیونکہ گناہ آ جائے گا اس میں دنیا آ جائے گی, اور پھر دنیا آ جائے گی تو پھر ہم بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے, مشکلات کا شکار ہو جائیں گے, خدا کی حضوری ہم سے دور ہو جائے گی. لہذا خدا کی حضوری میں رہیے, پاکیزگی میں زندگی بسر کیجیے تاکہ خدا آپ کثرت سے برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کریں. آئیے اپنے سر کو